I am a student of 8th class. This is third line. Fourth line, you have to speak about your hobbies. Like, my hobby is playing cricket. My hobby is watching movies. My hobby is playing badminton. My hobby is whatever your hobby is, you have to tell about that. In the last sentence, you have to speak, I want to become. I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to become a teacher. I want to become a bank manager. Like this, you have to speak. So, Avi, do you want to speak first about yourself? Five lines you have to speak about yourself. Okay, sir. Speak 5 lines about yourself. My name is Avi. I study in No, no, Mother's no, Pride. no, no. You have to speak like this. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Avi. I study in Mother's Pride School. I study. My I study in seventh standard, and my hobbies are to play See, you badminton. have to speak. See, you have to speak like this. Good evening, one and all. My name is Avi. I am from Delhi. I am from Haryana. I am from UP. You have to tell from where do you belong. And the third line, you have to tell about your class. I am a student of fourth class, fifth class, sixth class, seventh class. And fourth line, you have to speak about your hobbies. And in fifth line, you have to say, I want to become a doctor, teacher, engineer, anything, whatever you want to become. Start now. Good evening, one and all. I belong from Haryana. Now you are not telling about your name. Good evening, everyone. My name is Avi. I am from Haryana. Good evening, one and all. My name is Avi. I am from Haryana, and I study in seventh class. My hobbies are to swimming and play badminton, I want to become. and I want to become a teacher. Very good. Who is next now? Now, once you have to speak. My name is Vansh. I belong from Punjab. My hobby, I belong to. Yes, Vansh, you have to say, I belong to Punjab. good morning, everyone. My name is Vansh. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Vansh. I belong to Punjab. Study in seventh standard. My hobby is to play cricket, and I want to become a cricketer. Very nice. Now, Simran, you have to speak. Good evening, sir. My name is Simran. I study in ninth class. I belong it. I belong to Haryana. My hobby is doctor. No, I want to become a doctor. I want to become a doctor. My hobby is playing. Very nice. Who is next now? Yes, who wants to speak next? Turn on your mic and speak. Good evening, sir. Good evening, sir. My name is Lakshit. I am from Tapukra. I am student of class 5th. My hobbies are learning. I want to become a doctor. Very nice. Who is next? Sir, but we have to speak. You have to speak 5 lines about yourself. Like you have to speak about your name, from where do you belong. Like I am from Delhi, I am from Haryana. Then you have to tell about your hobbies and you have to tell about your aim. What do you want to become? Can I tell? Yes, you can. My name is Vidhi Chiller. I am in sixth You have to class. start like this. Good evening, everyone.
Good evening, everyone. I am my name is Vidit Chiller. I study in sixth class. I belong to Bhadargarh, Haryana. I want to become an IAS officer in future. Very good. Now, Lakshit, you have to speak. Good evening, sir. My name is Lakshit. I am from Tapokra, Rajasthan. I am a student of class 5th. My hobbies are learning. I want to become a doctor. Very good. Who is next now? Saurav, Gaurav, you also have to speak. Good evening, everyone. My name is Gaurav Mudgal. I am from Haryana and I am studying in class 8. I am playing cricket and I want to join army. Very nice. Now, Saurav. Good morning, everyone. My name is Gaurav No, no, Mudgal. no, no. Good evening, everyone. Yes, Saurav, speak again. You have to start like this. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Gaurav. I study in class 4 and I Yes, want somebody's mic is on. किसी का mic on है. Please turn off your mic. to become and I want to become footballer. Very good. Okay, Garima, it's your turn. Garima, you have to speak now. Garima, you have to turn on your mic. Your mic is off. Good morning, sir. One Good of all, evening, my name is. everyone. You don't have to say good morning. You have to say good evening. Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. My name is Garima. I am from Rajasthan. I am a student of class 5th. My hobbies are dancing and drawing. I want to become an IAS officer. Very good. Who is left now? Who has not spoken? Yes, Divija, it's your turn. You have to speak about yourself 5 lines. Good evening, everyone. My name is Dija. Good. I'm from Delhi. I'm studying in 4th A. My favorite hobby is art. I want to become. I want to become a doctor. Very nice. Now turn off your mic. Who is who is next? क्या बोलना है? Introduce yourself. बोलो, say. You have to speak about your name. You have to say good evening, everyone. My name is. Page बोलो, speak loudly. Good evening, everyone. My name is Bhavika. I study in I study in second class. I belongs to I belong to Sapla. Sapla. My hobby is My hobby is dancing. I want to become I want to become a pilot. a pilot. Very nice. Who is left now? Sir Riyan Solan. Yes, Riyansh. सर ये इसको ना क्लास नहीं अटेंड करने भाग रहा है ये रियांश
Yes, Riansh, you just have to speak 5 lines about yourself, like your name, your hobbies, class, from where do you belong, and what do you want to become. Sir, just a minute. He is going to washroom. Okay, who is left who has not spoken? Lakshit, turn off your mic. My name is No, no, I said turn off your mic. अभी आपको अपना माइक बंद करना है. आजा फटाफटा फटाफट तेरा काम रहता है बेटा देखो नीचे भी वेट कर रहे हैं बैठो यहाँ पे बैठो बैठो Good evening, everyone. My name is Riyan. I belong to I belong to. Sapla. My hobby is reading. I want to become. I want to become a scientist. Very nice. I guess everyone has spoken. Yes, now listen to me all. अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. I will teach you how to make sentences. I'll teach you vocabulary and we have to do spoken practice every day in the class. So जैसे अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अगर आपको स्क्रीन completely दिखाई नहीं देती तो आप फोन को ऐसे रखना. आप अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको completely दिखाई देगा, और अगर आप ऐसे रखोगे तो हो सकता है कि आपको फुल स्क्रीन दिखाई ना दे. ओके, तो आप स्क्रीन को ऐसे मत रखना, ऐसे रखना, फिर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा सब कुछ. ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. देखो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखेगा अभी. जस्ट ए मिनट. Yes, now once you tell me what is there on the screen. Once tell me what is there on the screen. Sir, there are course details, sentence formation, vocabulary, and spoken practice. It's written on the screen. And what is the last thing? Sir, grammar is written there. Very nice. So now listen to me all. In this course I'll teach you all these 4 things. इस कोर्स में मैं आपको ये चारों चीजें सिखाऊंगा. First thing I have written here, sentence formation. सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा? Sentence formation. Sentence formation means how to make sentences. मतलब हम sentences कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको वो सीखना है. Second thing I have written here, vocabulary. Vocabulary means word meanings. मैं डेली आपको word meanings लर्न कराऊंगा. डेली क्लास में मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दूंगा जो आपको लर्न करने होंगे. दिस इज सेकंड थिंग. नाउ somebody tell me what is on the third place. Spoken practice. Yeah. The third one is spoken practice. So every day you have to do spoken practice also in the class. इसमें डेली मैं आपको एक टास्क दूंगा. Every day you will get one spoken task. You have to speak about that. And what is the last thing? Grammar. grammar. Yes, Grammar. this is grammar. This is called grammar. So इस कोर्स में मैं आपको ग्रामर भी सिखाऊंगा. मतलब जैसे हम टेंसेस का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेपोजिशंस का यूज कहाँ पे करते हैं, आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे करते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है. एवरीथिंग आई विल टीच यू. So in this course
I told you that first thing I'll teach you sentence formation, second thing vocabulary, third thing spoken practice, and the fourth thing I have written here grammar. ये चारों चीजें मैं आपको कराऊंगा. फाइन. तो आज हम करेंगे स्पोकन मीन्स आज हम करेंगे सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक्सरसाइज नंबर 1. तो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 1. वो सबसे पहले आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो जस्ट ए मिनट. नाउ रियांश यू टेल मी, बताओ स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है. Use of IMR is MR. Yes, this is use of is am are. So this is exercise number 1 for sentence formation. ये sentence formation के लिए exercise number 1 है and this is use of is am are. So what you have to do everyone, आप सबको क्या करना है, आपको ये exercise अपनी notebook में note करनी है और उसके बाद मैं explain करूंगा. So write it down in your notebook. आप अपनी notebook में इसको note करो एक बार. Do fast. जो सबसे पहले नोट करेगा उसको एक आईफोन मिलेगा. Sir, done. Who has done? Vidhi. Very nice, Vidhi. You will get an iPhone from your father. Congratulations. Sir, payment कर देना. Payment your father will give. Yes, somebody's mic is on. Turn off your mic. Yes, turn off your mic. Yes, somebody's mic is on. Turn off your mic. Yes, किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखो. जैसे जब आपकी क्लास चलती है, जब आपको स्पीक करना है, जैसे जब आपकी टर्न आती है स्पीक करने की, तो आपको अपना माइक ऑन रखना है. और जब आपकी टर्न नहीं है, किसी और की टर्न है या फिर मैं स्पीक करता हूँ, तो आपको अपना माइक ऑफ रखना है. तो आपको हमेशा अपना माइक ऑफ ही रखना है. लेकिन जब आपकी स्पीकिंग टर्न आती है या फिर आपको कोई डाउट पूछना है, तो आपको अपना माइक ऑन रखना है और फिर मेरे से पूछना है या स्पोकन टास्क करनी है. Written everyone? Relative plus Divija, have you written? no sir. Do fast. Riyansh, have you written? Sir. No sir. Yes, Ronak, you are also in the class or not? Ronak, are you here? लिखो लिखो. Yes, sir. So Ronak, you did not speak 5 lines about yourself. आपने अपने बारे में 5 lines speak नहीं की. No, sir. अभी speak करो, अपने बारे में 5 lines बताओ. My name is Ronak. You have to speak like this. Good evening, everyone. My name is Ronak. Good evening, everyone. My name is Ronak. Uh, I am from. I am from Haryana. I am a student of. I am student of fifth class. My I want hobby. to become a soldier. My hobbies are. My hobbies are
Playing cricket. Very nice. So Ronak, now you tell me, have you written exercise number 1? Yes, sir. Very good. I think everyone has written. Avi, have you written? Sir, mother has written. Okay. Vansh, have you written? Sir, I am on the last line. Nice. यस, देखो अभी क्लास के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी लिख पाता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर आप नहीं भी लिख पाओगे तो मैं क्या करूंगा, जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं ये पिक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप बाद में आराम से नोट कर सकते हो. वैसे साथ साथ नोट करोगे दैट विल बी बेटर. या तो आप साथ साथ लिखते रहना, लेकिन बाय चांस अगर आपकी 1 लाइन या 2 लाइन्स आपकी मिस भी हो जाती हैं तो क्लास के बाद में ग्रुप में डालूंगा ये, तो आप उसमें से नोट करना फिर अच्छे से. I have done, sir. वेरी नाइस. Yes, now I think everyone has written. So now I'm going to explain. अब मैं explain करता हूँ. So today we have to do exercise number 1. Exercise number 1 I have written here, use of is MR. तो इस एक्सरसाइज में देखो हमें क्या सीखना है कि हम is MR इन तीनों का यूज हम कहाँ पे करते हैं. तो देखो is MR का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसकी एक पहचान होती है. और वो पहचान क्या होती है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो हम इज लगाएंगे. अगर सेंटेंस के लास्ट में हूं आता है तो हम एम लगाएंगे. अगर सेंटेंस के लास्ट में है या हो आता है तो हम आर लगाएंगे. कैसे, देखो अभी समझो एक बार. अगर सेंटेंस में है आता है, जैसे वह एक डॉक्टर है, वह एक अभिनेता है, वह मेरा दोस्त है, तो हम वहां पे इज लगाएंगे. जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर. नेक्स्ट देखो, अगर किसी सेंटेंस में हूं आता है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक टीचर हूं, तो वहां पे हम लगाएंगे एम. जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर. मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर. नेक्स्ट देखो, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है आता है, जैसे वे मेरे दोस्त हैं, तो हम वहां पे आर लगाएंगे. जैसे वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स. आप एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर. लाइक दिस वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस. नाउ सी, हम इज एम आर इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखो, अगर हम आई वर्ड यूज करते हैं तो आई के साथ हम लगाएंगे एम, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर इनके साथ हम लगाएंगे इज, और वी, यू, दे एंड प्लूरल इनके साथ हम लगाएंगे आर. नाउ अभी यू टेल मी, हम आई के साथ क्या लगाएंगे और शी के साथ क्या लगाएंगे. सर शी, किसके साथ पर? शी, इसके साथ शी के Sir, साथ repeat क्या करना. लगाएंगे. शी. will. She. Sir is. Sir is. ओके, नहीं एक एक करके बताना है. मैं जिससे पूछता हूँ उसी को आंसर देना है. नाउ आई एम आस्किंग टू अवी. अवी यू टेल मी, हम यू के साथ क्या लगाते हैं Are. और वी के साथ क्या लगाते हैं. Will. नो, वी के साथ हम लगाएंगे आर. Are को कैसे? ओके, नाउ गरिमा यू टेल मी, हम आई के साथ क्या लगाएंगे Sir M. और ही के साथ Is. और दे के साथ R. और रोहन के साथ रोहन के साथ सर is. और सलमान के साथ R. नो. सलमान के साथ तो हम खान लगाते हैं. बताओ सलमान के साथ इज एम आर में से बताओ, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा. Is. वेरी नाइस. नाउ वंश यू टेल मी, विद आई व्हाट वी हैव टू यूज. Am.
And with he, is, just with they, are, with Priya, is, with Katrina. is, No, with Katrina we have to use calf. Again tell me, Katrina के साथ क्या लगाएंगे हम? calf, इसके साथ क्या लगेगा? और कैटरीना कैफ के साथ क्या लगाएंगे? is, वेरी नाइस। और शाहरुख खान के साथ क्या लगाएंगे? is. वेरी नाइस। ओके, नाउ नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अब हमें सीखना है कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो देखो, सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। हम डेली 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। वो 4 टाइप के सेंटेंसेस कौन से हैं? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो वंस यू टेल मी, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? Sir, simple sentence. सेकंड, Negative sentence. थर्ड Interrogative sentence. एंड फोर्थ। Interrogative plus negative sentence. वेरी नाइस। नाउ लक्षित, यू टेल मी, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? Simple sentence. सेकंड, Negative sentence. थर्ड Im- interrogative sentence. एंड फोर्थ। Interrogative plus negative sentence. वेरी नाइस। नाउ रौनक, यू टेल मी, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? यस रौनक। Sentence. Simple. एंड Simple sentence. सेकंड Negative sentence. एंड थर्ड Inter. इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव Interrogative sentence. एंड फोर्थ Interrogative. Intro. Negative. या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, यस नो। ओके, नाउ टर्न ऑफ योर माइक एवरीवन, टर्न ऑफ योर माइक। तो देखो, हम 4 टाइप के सेंटेंसेस डेली क्लास में बनाना सीखेंगे। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव। जो थर्ड मैंने सेंटेंस लिखा है इसको कुछ लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव, सो दैट इज इनकरेक्ट। इंटेरोगेटिव कोई वर्ड ही नहीं होता। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। एंड द फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव देखो, सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेंटेंस में? हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस रिमेनिंग पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट। और इंट्रोगेटिव में इजेमार सब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क, इजेमार सब्जेक्ट नॉट रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? सेंटेंस में पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर इजेमार में से कोई एक लगाना है, फिर जो भी बचेगा वो लास्ट में लगा देंगे। ये लास्ट में बचने वाला जो वर्ड होगा ये कोई एडवर्ब भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम 2 चीजें यूज करेंगे, सब्जेक्ट और इजेमार, और जो बाकी बचेगा वो हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम ऐसे बनाएंगे, आई एम अ डॉक्टर। फिर मैंने बोला आप एक डॉक्टर हो, तो आपकी इंग्लिश होती है यू, तो ऐसे बनाएंगे, यू आर अ डॉक्टर। फिर मैंने बोला वह एक डॉक्टर है, तो ऐसे बनाएंगे, ही इज अ डॉक्टर। ये तो बना सिंपल सेंटेंस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, वह एक डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे बनाएंगे, ही इज नॉट अ डॉक्टर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, इज ही
अ डॉक्टर। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, इज ही नॉट अ डॉक्टर। और कभी कभी क्या होगा, सेंटेंस में हम कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इंग्लिश में ये टोटल होते हैं 9। कौन कौन से? वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, जो, विच, हाउ। ये सब मैं आपको लर्न कराऊंगा। और लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से क्या होगा, ये वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिर आप लाइफ में इनको कभी भी नहीं भूल पाओगे। आप 2 सेकंड में ऐसे बताओगे, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, जो, विच, हाउ। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, जो, विच, हाउ। तो ये मैं आपको ट्रिक से लर्न कराऊंगा। यहाँ पे आपको क्या सीखना है, अगर कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हम यूज करेंगे तो वो हम इजेएमआर से पहले यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मैं पूछता हूँ, आप कहाँ हो, तो ऐसे बनाएंगे, वेयर आर यू। मैंने पूछा आप कैसे हो, तो ऐसे बनाएंगे, हाउ आर यू। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। और इसको शॉर्ट में हम ऐसे बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम। अब मैं हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विधि, यू हैव टू ट्रांसलेट। Yes, sir. Yes, Vidhi. I'm speaking some sentences in Hindi. You have to translate into English. Now speak. मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. मैं एक विद्यार्थी हूँ। I am a student. मैं एक अध्यापक हूँ। I am a teacher. Teacher. नहीं, एक एक करके बोलना है, जैसे मैं दिन से पूछूंगा उन्हीं को आंसर देना है। नाउ ओनली विधि हैज टू स्पीक। सो विधि, नेक्स्ट सेंटेंस यू टेल मी। आप एक डॉक्टर हो। You are a doctor. वह एक डॉक्टर है। He is a doctor. वेरी नाइस। नाउ गरिमा, यू टेल मी। वह एक डॉक्टर है। He is a doctor. वह एक डॉक्टर नहीं है। He is not a doctor. क्या वह एक डॉक्टर है? क्या वह एक डॉक्टर है? What you इज are ही ए saying? डॉक्टर? देखो ऐसे बनाएंगे, इज ही अ डॉक्टर। स्पीक नाउ। He a doctor? क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? Is he a not a doctor? अगेन, Is he a not a doctor? नो। इज ही नॉट अ डॉक्टर? Not a doctor. Doctor. स्पीक अगेन। Is he not a doctor? वेरी नाइस। नाउ अवी, यू हैव टू ट्रांसलेट। Sir. Yes, Avi, see, there are 10 sentences. You have to translate all the sentences into English. You have to speak one by one in Hindi, English both. You have to speak like this. मैं एक विद्यार्थी हूँ, I am a student. आप एक विद्यार्थी हो, you are a student. वह एक विद्यार्थी है, he is a student. वह एक विद्यार्थी नहीं है, he is not a student. क्या वह एक विद्यार्थी है, is he a student? So like this, all the 10 sentences you have to translate into English. So Avi, translate. मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी है, इज ही अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है, इज ही नॉट अ स्टूडेंट। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम रोहन है, माय नेम इज रोहन। आपके पापा क्या है, व्हाट इज योर फादर। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं, माय फादर इज अ Government employee. गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Very nice. Now the next student is Lakshit. Lakshit, you have to translate these sentences into English. मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। यह
वह एक विद्यार्थी है। ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी नहीं है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी है? इज ही अ स्टूडेंट? क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है? ही इज नॉट अ स्टूडेंट। No, आपका is नाम? he not a student? इज ही नॉट अ स्टूडेंट? मेरा आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम रोहन है। माय नेम इज रोहन। आपके पापा क्या है? व्हाट इज योर फादर? मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं। माय फादर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। Employee. एम्प्लॉय। Very nice. Now the next student is Vansh. Vansh, you have to translate all these sentences into English. यस सर। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हो। यू आर अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है। ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी नहीं है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी है? इज ही अ स्टूडेंट? क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है? इज ही नॉट अ स्टूडेंट? क्या आपका नाम क्या है? वॉट यू आर अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है। ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी नहीं है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी है? क्या वह एक विद्यार्थी है? इज ही अ स्टूडेंट? क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है? इज ही नॉट अ स्टूडेंट? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम रोहन है। माय नेम इज रोहन। आपके आपके पापा क्या है? व्हाट इज योर फादर? मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी है। माय फादर इज अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Very nice. Very nice. Okay, the next एक्सक्यूज मी student. सर। Yeah. सर सौरभ की टर्न नहीं आई थी। Yes, Saurav, it's your turn now. Saurav, you have to translate पाओगे और इंग्लिश में लिख भी पाओगे। मतलब वट एवर यू स्पीक इन हिंदी, जो भी आप हिंदी में बोलते हो, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। वो आप इंग्लिश में भी बोल पाओगे। कब? जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी आपको। और आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, कोई भी लेटर लिखते हो, कोई भी रिपोर्ट लिखते हो, अपने एग्जाम में कोई डायरी एंट्री लिखते हो, या शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, या लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, वो सब कुछ आप इंग्लिश में लिख पाओगे। आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू क्रैम। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा। यू कैन राइट डाउन एनीथिंग ऑन योर ऑन। आप खुद से अपने पास से सेंटेंसेस बना के आप लिख पाओगे। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? एवरी डे यू हैव टू लर्न। फर्स्ट थिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेकंड थिंग, vocabulary. थर्ड थिंग, स्पोकन प्रैक्टिस। एंड फोर्थ थिंग, यू हैव टू लर्न ग्रामर। तो अभी जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 कराई, दैट इज स्पोकन प्रैक्टिस, तो वो आपकी हो गई। नहीं, स्पोकन प्रैक्टिस तो आपने पहले की थी। जैसे आपने जो अपने बारे में 5 लाइन स्पीक की थी, दैट वाज स्पोकन प्रैक्टिस। अभी जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 कराई, दैट इज सेंटेंस फॉर्मेशन। अब मैं आपको वोकैबुलरी कराता हूँ। वोकैबुलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैं आपको कोई सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, और उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप सेंटेंस बना पाएंगे क्या? आई थिंक नो। तो इसलिए आपको डेली क्लास में मैं वर्ड मीनिंग्स भी लर्न कराऊंगा। सो नाउ वेट फॉर 1 मिनट, आई एम शोइंग यू सम वर्ड मीनिंग्स। माइक का वर्ड मीनिंग। Yes, now see, this is exercise number 1.
for vocabulary. So in vocabulary, every day I'll give you some words. Like first word I have written here, stubborn. जो stubborn word मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं जिद्दी. और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आती तो देखो मैंने इसकी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है. दिस इज stubborn. So the first word is stubborn and the meaning of this word is जिद्दी. सेकंड वर्ड आई हैव रिटन हियर पैट्रियट. पैट्रियट और इसको हिंदी में बोलते हैं देशभक्त. जो अपने देश से प्यार करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड पैट्रियट. थर्ड वर्ड आई हैव रिटन हियर नोजी. नोजी मीन्स होता है ऐसा इंसान जो दूसरों के मामले में ज्यादा ताक झांक करे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के मामले में ताक झांक करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नोजी. नेक्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर माइजर. माइजर को हिंदी में बोलते हैं कंजूस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइजर. नेक्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर क्रैश. क्रैश का मतलब होता है बहुत ज्यादा मूर्ख. मूर्ख. यस. इन द नेक्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर फिक्कल माइंडेड. फिक्कल माइंडेड को हिंदी में बोलते हैं चंचल. Now see, I have written here British and American words as well. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में अलग होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में अलग होते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है रबर. रबर को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं इरेजर. नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है हॉलीडे. हॉलीडे को बताओ अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेकेशन. वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड है रबिश. रबिश को अमेरिकन में क्या बोलते हैं? गार्बेज. 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 नेक्स्ट वर्ड है बिस्किट. बिस्किट को अमेरिकन में क्या बोलते हैं? कुकीज. कुकीज. और देखो कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स होती हैं जो हम हिंदी में यूज करते रहते हैं. जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. ऐसी कुछ कहावतें होती हैं. ये कहावतें जो होती है वो मैं आपको इंग्लिश में लर्न कराऊंगा. लेकिन अगर आप में से किसी को ये सब डिफिकल्ट लगे तो आप ये प्रोवर्ब वाला पोर्शन छोड़ सकते हो. बाकी वर्ड मीनिंग्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे. देखो वर्ड मीनिंग्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे आपको. और ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे. लेकिन जो प्रोवर्ब वाला जो पार्ट है, इफ इट सीम्स डिफिकल्ट फॉर यू देन यू कैन लीव इट. आप इसको छोड़ सकते हो. तो देखो मैंने एक प्रोवर्ब लिखी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक. द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक. नाउ आई हैव रिटन हियर टू स्पीकिंग सेंटेंसेस. ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम डेली अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते रहते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे वर्ड सेंटेंस लिखा है भगवान न करे. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉड फॉरबिड. नेक्स्ट मैंने लिखा है ऐसा लगता तो नहीं. हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा लगता तो नहीं. जैसे सपोज करो कि आपके घर पे आपके ब्रदर या सिस्टर वो कोई शर्ट खरीद के लाते हैं और आपने पूछा व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस. उन्होंने बताया 10,000 रुपीज. तो आप बोलोगे लगता तो नहीं. तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट डजंट सीम सो. तो बताओ मैंने एक सेंटेंस लिखा है भगवान न करे. बताओ भगवान न करे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुड फॉरबिड. गुड फॉरबिड. ऐसा लगता तो नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? It doesn't seem so. Very nice. Now I am asking one by one. So first student is Avi. Avi, you tell me what's the English of Jiddi? stubborn. Okay, turn off your mic, everyone. Stubborn. Everybody, turn off your mic. Yes, turn off your mic, everyone. देखिए पहले एक का फिर दूसरे का फिर तीसरे का. Once you tell me what is the meaning of stubborn? Stubborn आता है. Sir, your voice was breaking. Can you please say again? What's the meaning of stubborn?
सर जिद्दी। And patriot? सर देशभक्त। And nosy? सर जो दूसरों के मामले में ज्यादा झांकता हो। ज्यादा ताक झांक करे। हाँ। And miser? कंजूस। And crass? बहुत ज्यादा मूर्ख। And fickle minded? चंचल। Okay, what's a bit American word for rubber? इरेजर। Holiday? Vacation. वेकेशन। And rubbish? गार्बेज। Okay. And biscuits? कुकीज। Very nice. Now the next student is Garima. Garima, you tell me what's the meaning of stubborn? Stubborn. आप सारे याद कर पाते। Stubborn. Stubborn. Didi. Yes, Garima, tell me what's the meaning of stubborn? देशभक्त. जिद्दी, And patriot? देशभक्त, Nosy? दूसरों के मामले में जो दूसरों के मामले में ताका झाकी करता हो। Very nice. Miser? कंजूस, And fickle minded? क्रैश. चंचल, And crass? बहुत ज्यादा मूर्ख। Very good. आयुष. Yes, now. Now listen to me everyone. जैसे देखो अभी मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 आपके सामने एक्सप्लेन की यूज ऑफ इजेमा। तो अभी मैं क्या करूंगा, क्लास के बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सेंड करूंगा। उन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उनको चेक कराऊंगा। फाइन। और वोकैबुलरी के लिए जो अभी मैंने आपको शो किया था ये भी मैं आपको सेंड करूंगा। आपको अपनी नोटबुक में इनको नोट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे वर्ड मीनिंग भी पूछूंगा और मैं एक स्पोकन टास्क भी आपको सेंड करूंगा, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी। की तो लिखी पड़ी है ना ये Okay, then. Good night, everyone. See you in next class on Wednesday. Bye, sir. Bye, sir. Everyone. Good night, everyone. Good night. बाय। रुक जा रुक जा रुक जा. रुको रुको सबने लीव कर दी.